نذرانے عقیدت پیش کرے تھے جناب کاشف قادری صاحب۔ سونا من آنگن ہے دور اکھیوں سے یار سجن ہے، دور اکھیوں سے یار سجن ہے، ہوئی راتوں کی نیند حرام رے موہے یار پلاو جام رے موہے یار پلاو جام، موری مستی میں ڈوب جائے شام رے موہے یار پلاو جام، کب آئیں گے مورے سیاں، کب آئیں گے مورے سیاں، جھولا جھولوں پکڑ کے بیاں، جھولا جھولوں پکڑ کے بیاں، جائے بیت عمریہ تمام رے۔ اب جس شخصیت کو میں دعوت دے رہا ہوں، دوسری دفعہ میزبانی اس پروگرام کی انہی کے سپرد تھی، سرپرستی کر رہے ہیں پروگرام کی۔ اب بڑی خوبصورت شخصیت ہے، بلوال بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، سابقہ پریزیڈنٹ ہے اور موجودہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، اور راجپوت برادری کے وہ سرخیل ہیں جن کو یقیناً راجپوت برادری کو ان کے والد پہ بھی ان پہ بھی بڑا فخر ہے۔ جناب رانا صاحب، تیری آنکھوں کی سہولت و میسر جس کو، تیری آنکھوں کی سہولت و میسر جس کو، وہ بھلا چاند ستاروں کو کہاں دیکھے گا، اور سامنے حسن ہو اور حسن بھی تیرے جیسا، پھر کوئی دل کے خساروں کو کہاں دیکھے گا۔ آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں جناب رانا شہزادہ علیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتظامیہ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ مجھے کہیں سٹارٹ میں رکھا کریں۔ قابل محترم کیونکہ یہ دعویٰ ہے کہ میں تو شاعر نہیں ہوں، تک بندی کبھی کبھی، بیسیکلی تو میں اپنے کلچر کا ایک مجاہد ہوں، اور میرے وین شعر تو میرا ہے کوئی نہیں، چند وین ہیں، تو ان میں سے کچھ دو چار عرض کر دوں گا۔ باقی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج اس محفل میں بابا جی اصغر حسین شامی صاحب اور جناب عزت نواب خواجہ ناصر ادیب صاحب دونوں بزرگ ہستیاں موجود ہیں، اور بلوال کی ایک گم شدہ عظیم شخصیت قبلہ آغا صاحب بھی موجود ہیں۔ ان کو واپس اپنے اس شہر سے ہمیں آغا صاحب اتنا پیار ہے کہ انگلینڈ میں دریائے جو جیمز ریور ہے اس کے کنارے بیٹھ کے بندہ ناچیز دعا کیا کرتا تھا، یا ربا پلوار دی نہر کہیں ہے۔ صابر علی صابر صاحب محترم، تو استاد محترم سلیم صاحب اور دیگر معززین جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور مہمان خصوصی ابرار ندیم صاحب، اور جنہوں نے مجھے یہاں پر خوش آمدید کہا، میرے محترم، میرے قائد، میرے بڑے بھائی رانا فیاض احمد صاحب اور رانا طارق صاحب، اور جنہوں نے آج کی محفل کا اہتمام کیا، ان سب تنظیمات اور شعراء اور سب حاضرین و ناظرین محفل، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ جن کا نام نہیں لے سکا وہ بھی یہی سمجھیں کہ دل پہ لکھا ہوا۔ تو بڑے شعراء اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوں، پنجابی میں چند شعر سنانے نے، کیونکہ سارے نوجوانوں کی میں اگے بھی ایک تجویز دیتی سی کہ یہاں مشاعرہ رکھا کرو نوجوانوں کی تربیت کا، تو یا میرا اساتذہ سننا ہے، تو پھر فکس کر
ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਡਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਬਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਉਹ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਮੁਗਲ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਗਲ ਕੌਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵਤਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੇਡਰਸ ਮੁਗਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਮਲਾਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਬੇ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਅਮੂਮਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ और आखिरी मिसरे च इस्तेमाल करते हैं। मैं ये उस्ताद जी शुरू अपने ना ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। शहज़े खान ने थुआथों खरीद होया, शहज़े खान ने थुआथों खरीद होया, ताही अज सवाल जदीद होया। हुसैन रसूल दे दोतरे दा दुल्ला रा लोको इंज मुरीद होया। नजाम मिर्जा कोई शिमर दी परत आही, नजाम मिर्जा कोई शिमर दी परत आही, चुगता जली उस वेले यजीद होया। जैदे पुत्र नू लद्दी ने जान बख्शी, ਮਾਈ ਲੱਤੀ, ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ। जैदे पुत्र नू लद्दी ने जान बख्शी, ओदे हथों ही लाल शहीद होया। बड़े वेखे जहान ते नमक हराम, पुत जल्लू दा ते दुध तलीद होया। ओ की जल्लू ते जल्लू दा पुत रोइए, ਵਾਹ तिम्मो लिंगे दा बी बेदीद होया। तिम्मो लिंगे दी समझ आई जी? बड़ा वड्या के तुसी तरीका च नाम लिख दो हजरत अमीर ਕਿਮਰ ਲੱਗ, हैं तिम्मो लिंगा। ਹਾਂ इन्ना लहू दी खेडी हिंद विच होली, ਹਾਂ जिथे हर दिन इन होण मुत्ताकीन शहजी। हर पासे मैं तां भाड़ थकां, सुंजे दिसण शुमाल यमीन शहजी। एक कामल मुर्शद सत गुर सच्चा, लभ आया समवात जमीन शहजी। ते किवें किरत कुरान दी करनी है, सोच समझ के सिख करीन शहजी। ते किवें काफ हुसैन ने पढ़ी नेज़े, ते किवें हुरमल पढ़ी यासीन शहजी। ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत को पजीराई मिलती रहे, कभी कभी मार कुटाई भी हो जाती है और फिर दिल रुबाई की खातिर वो बर्दाश्त भी करना पड़ता है। वो किसी शायर ने इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था, अपना ये रुदाद बयान की थी कि फेर ली राणा साहब, फेर ली उसने हमसे अखियां परसों से, फेर ली उसने हमसे अखियां परसों से, मुंह पे बैठ रही हैं मक्खियां परसों से, और पेंजा चढ़ा उसके चारों भाइयों ने, सेक रहे हैं अपनी बखियां परसों से। बहुत तजुर्बाकार हमारे बलवाल के शायर, बलवाल के लिए मैं तो ये कहूँगा पंजाब के नुमाइंदा शायर जिन्होंने बलवाल का तारफ पंजाब की सतह पे करवाया, और बलवाल में अदबी महफलों के रूए रवा हैं। आज की ये बज़्म भी उन्हीं के मरूने मिन्नत यादों के खाकदा में मुझे याद आ रही है कि कभी जब उन पे शबाब हुआ करता था, महफिलें पूरे उरूज पे हुआ करती थी, और जितने भी ऐसी साहिबान यहाँ पे तशरीफ लाए वो ज़रूर ख्वाजा साहब के खिदमत हासिल करते थे, और मैं भी इनके दम कदम होता था। जनाब असगर शामी साहब सरपरस्ती फरमाया करते थे, आज सुफियान दिलावर साहब
ہمارے پریوار کے ایسی ہیں اور مجھے اب پورا یقین ہے کہ ان کا بھی ادب سے خاص شغف ہوگا اور وہ ضرور کوئی ایسا بھرپور مشاعرہ کروائیں گے کہ پریوار کی وہی پرانی یادیں پھر سے تازہ ہوں۔ تو خالد صاحب مجھے وہ پرانی یاد آ رہی ہے کہ یادوں کے خاکداں میں محو خرام ہے، یادوں کے خاکداں میں محو خرام ہے، پھر آج دشت دل میں بڑا اہتمام ہے، اور بتلا نہ پائے تجھے کہ دل میں تیرے لیے سب سلسلوں سے ہٹ کر الگ ہی مقام ہے۔ آپ کی بھرپور تعریف گونج میں جناب خواجہ عظیم ناصر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی ابراز ندیم صاحب، جو کہ کبھی بھلوال کے تھے لیکن آج کل لاہور میں جب عطا اللہ قاسمی کے پاس گئے تو ان کے ہی ہو کے رہ گئے، تو آج غالباً 25 سال بعد بھلوال تشریف لائے، تو میں نے سوچا کہ ان کے اعزاز میں ایک محفل رکھی۔ وہاں سے ادبی رسالہ ایک ماہنامہ الینگ نکالتے ہیں اور ریڈیو پاکستان لاہور کے پروڈیوسر ہیں اور 4 یا 5 کتابوں کی مصنف بھی ہیں، تو ہم نے فائدہ اٹھایا اور انہیں آج یہ زحمت دی۔ اور مہمان خصوصی جناب سفیان دلاور صاحب بھلوال میں 1 سال سے آئے ہوئے ہیں، لیکن میری ان کی پرسوں پہلی ملاقات ہوئی، وہ بھی میں اپنی غرض سے گیا کہ میں نے یہ تقریب کرنی تھی اور میری خواہش تھی کہ وہ ہمارے چیف گیسٹ بنے۔ بچوں نے کہا کہ جی مشاعرہ رکھنا ہے تو انہیں لازمی بلاتا ہے، میں چلا گیا۔ بہرحال انہوں نے یہ بڑی شفقت کی آگے، تو میں انہیں یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اصغر شامی صاحب بہت پورے شہر کو تقریباً پتا ہے کہ میرا ان کا کوئی اختلاف تھا، جہاں وہ جاتے تھے میں نہیں جاتا تھا، جہاں میں جاتا تھا وہ نہیں جاتے تھے۔ یہ پچھلے اتوار کو بھی مشاعرہ ہوا، انہوں نے کہا جی شامی صاحب نے آنا ہے، میں کہا وہ نہیں آئیں گے، یا ان سے کہو کہ خواجہ نہیں آ رہا۔ تو میں نے ان کو پھر ایسی پٹڑی ماری، میں نے کہا جناب کہ آئے ہوئے ہیں جناب ابراز صاحب، تو میں ان کو جناب یہ آگے لگاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ میرے استاد، میرے بزرگ، میں ان کا جتیوں کا غلام ہوں جناب، تو میرے سب کچھ۔ باقی نہیں بات، صابر صاحب بہت سینئر، اچھا کلام لکھتے ہیں مجھ سے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ پہلے میں پڑھتا ہوں۔ عمر میں چھوٹا ہونا، میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ کوئی بات نہیں، لیکن بہت اچھا لکھتے ہیں۔ تو میں آج اتنا ٹائم جو اسی لیے لیا ہے کہ میں سناؤں گا کم، باتیں زیادہ کروں گا۔ 2 شعر سفیان صاحب کی نظر ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کہ آپ کو زلف کی زنجیر بہت پیاری ہے، آپ کو زلف کی زنجیر بہت پیاری ہے، اور مجھے درد کی جاگیر بہت پیاری ہے۔ آپ ملنے سے گریزاں ہیں، میرے پاس ہے یہ، آپ سے آپ کی تصویر بہت پیاری ہے۔ آج ایک نئی بہر کی جی خوشبو میں بعد میں سناؤں گا جی، ایک نئی بہر کی غزل ہے۔ مجھ کو رنگین سی مورت کا پرستار نہ کہہ، مجھ کو رنگین سی مورت کا پرستار نہ کہہ، جو بھی مل جائے میری جان اسے یار نہ کہہ، جو بھی مل جائے میری جان اسے یار نہ کہہ۔ اور لوگ پتھر کو خدا مان گئے ہیں لیکن، لوگ پتھر کو خدا مان گئے ہیں لیکن، میں نے انسان کو پوجا ہے گناہ گار نہ کہہ۔ لوگ پتھر کو خدا مان گئے ہیں لیکن، میں نے انسان کو پوجا ہے گناہ گار نہ کہہ۔ ان کی خواہش ہے کہ رخسار کی باتیں لکھوں، ان کی خواہش ہے کہ رخسار کی باتیں لکھوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا آزار نہ کہہ، لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا آزار نہ کہہ، اور اس میں انسان کا نیلام ہوا کرتا ہے، اس میں انسان کا نیلام ہوا کرتا ہے۔
اس کی محفل ہے اسے مصر کا بازار نہ کہے، اس کی محفل ہے اسے مصر کا بازار نہ کہے، اور مسکراہٹ میں بڑے بھید چھپے ہوتے ہیں، مسکراہٹ میں بڑے بھید چھپے ہوتے ہیں، مسکرائے جو تجھے دیکھ کے دلدار نہ کہے۔ ایک ہم ہے کہ خوشبو ہمیں سونے نہیں دیتی، ایک ان کے لیے باعث آرام ہے خوشبو۔ اور شعر دیکھنا جی، تو پھول ہے ہر گام یہاں سوچ کے چل، ایسا تو پھول ہے ہر گام یہاں سوچ کے چلنا، اس شہر میں ہر موڑ پہ بدنام، تو پھول ہے ہر گام یہاں سوچ کے چلنا، اس شہر میں ہر موڑ پہ بدنام ہے خوشبو، اور ذہنوں میں اترنا میری فطرت میں ہے ناصر، ذہنوں میں اترنا میری فطرت میں ہے ناصر، ہر سمت بکھرتا ہوں میرا نام ہے خوشبو۔ حضرات گرامی، جناب رانا جاوید صاحب کے ہم دل کی اتھا رویے سے مشہور کے آج کی اس بزم میں تشریف لائے اور بس ان کی رونق کو دوبالا کیا۔ حضرات محترم، تاج محل محبت کا ایک اشتہارہ ہے، مختلف شعراء نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے اس تاج محل کو عجیب عجیب انداز سے استعمال کیا۔ ایک شاعر کہنے لگا کہ ایک شہنشاہ نے تاج محل بنا کر ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی، اور دوسرا شاعر کہتا ہے ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ اور تاج محل میں یہ شامی صاحب کی نظر کہ تاج محل میں ایک کمی تھی، میں نے تیری تصویر لگا دی، تاج محل میں ایک کمی تھی، میں نے تیری تصویر لگا دی۔ اب اس تاج محل اور اس اشتہارے کو اور محبت کو کس انداز سے، خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں آج کے مہمان اعزاز جناب ڈاکٹر جاوید آغا صاحب۔ تمام آباد کا شکر گزار ہوں، لال میرا شہر ہے، میں اس لیے تو میں بھی بات ٹھیک ہو نہیں رانا صاحب جناب ابراز ندیم صاحب، اللہ کریم نے علم شرف نور عطا فرمائے، ادب کرتے ہیں، بڑے آدمی ہیں، رانا صاحب تشریف فرمائے، بات صاحب آج تقریباً 9 سال بعد میں ایک دفعہ پہلے آیا ہوں، 9 سالوں میں اور ایک دفعہ میں کچھ بیمار ہوں اور اپنے آبائی گاؤں گالی میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک غزل کے چند اشعار ایک شعر سے ابتدا کروں گا کہ خدا کے واسطے چھینو نہ بیٹی کا دوپٹہ، خدا کے واسطے چھینو نہ بیٹی کا دوپٹہ، ابھی بڑھیا جوان بیٹے کا غم ہوگی، ابھی بڑھیا جوان بیٹے کا غم ہوگی۔ ایک اور شعر کہ 13 برس کی عمر میں مرنا پڑا اسے، 13 برس کی عمر میں مرنا پڑا اسے، آنکھوں کی بھیڑ چڑھ گئی بچی غریب کی۔ قدر کے چند اشعار ہیں۔ راجدھانی ہے تو سردار نہ گرنے پائے، راجدھانی ہے تو سردار نہ گرنے پائے، کوئی بھی بے بس و لاچار نہ گرنے پائے، کوئی بھی بے بس و لاچار نہ گرنے پائے، سر اگر کاٹ کے لے جاتا ہے لے جائے بے شک، سر اگر کاٹ کے لے جاتا ہے لے جائے بے شک، میرے سر سے میری دستار نہ گرنے پائے، سر اگر کاٹ کے لے جاتا ہے جائے بے شک، میرے سر سے میری دستار نہ گرنے پائے، سب ہی شبزاد قوا کھینچ رہے ہیں اس کی، سب ہی شبزاد قبا کھینچ رہے ہیں اس کی،
खालिका साहिब किरदार न गिरने खालिका साहिब किरदार न गिरने पाए मेरे असलाफ की नामूस मुकद्दम रखना मेरे असलाफ की नामूस मुकद्दम रखना मेरा लाशा सरे बाजार न गिरने मेरे असलाफ की नामूस मुकद्दम रखना मेरा लाशा सरे बाजार न गिरने पाए और रेत का एक घरौंदा है मोहब्बत अपनी क्या बात है रेत का एक घरौंदा है मोहब्बत अपनी ये घरौंदा बस दीवार न गिरने रेत का एक घरौंदा है मोहब्बत अपनी ये घरौंदा बस दीवार न गिरने पाए मेरे फनपारों को तौकीर मिले या न मिले मेरे फनपारों को तौकीर मिले या न मिले मेरे अंदर है तो फनकार न गिरने मेरे अंदर है तो फनकार न गिरने मेरे फनकारों को तौकीर मिले या न मिले मेरे अंदर है जो फनकार न गिरने पाए अच्छा शेर है इस सलीके से इन्हें आज पिलाना साकी इस सलीके से इन्हें आज पिलाना साकी रात भर कोई भी मैं खार न गिरने पाए इस सलीके से इन्हें आज पिलाना साकी रात भर कोई भी मैं खार न गिरने पाए हाथ कटते हैं तो कट जाएं मगर हाथों से हाथ कटते हैं तो कट जाएं मगर हाथों से मेरे असलाफ की तलवार न गिरने हाथ कटते हैं तो कट जाएं मगर हाथों से मेरे असलाफ की तलवार न गिरने पाए और घर की दीवार पे तस्वीर है आवेसा घर की दीवार पे तस्वीर है एक आवेजा देखना वो मेरे गमखार न गिरने देखना वो मेरे गमखार न गिरने का बोझ विरसे में मिला है बोझ विरसे में मिला है ये गमों का आगा कि बोझ विरसे में मिला है ये गमों का आगा मेरे कानों से मेरा बार न गिरने वो सरापा सामने हो तो इश्तियारे मुस्कर चांद जुगनू फूल खुशबू सितारे मुस्कर और तस्करा जिसमें ना हो उनके इसमें किरदार का जब्त वो महफिले वो शुमारे मुस्तरद इसी तैसी बर्बाद जनाबे सुफियान दिलावर साहब मुअज़्ज़ज़ शोरा सामीन और इंतज़ामिया शामिल क्योंकि अज़ान का टाइम है मैं बात को मुख्तसर करूँगा सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई इस अदबी महफिल का हिस्सा बनने पर मैंने कल गुजारिश की थी इनसे कि मेरा अदब से लगाव तो है लेकिन मेरा नसर से ज़्यादा है तो मुझे लगता है कि मुझे अपना लगाव जो है वो इस तरह की महफिलों में आके थोड़ा सा शायरी की तरफ में लेकर आना तो इंशाल्लाह आपने बात की थी कि मुशायरे की हम भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि एमसी में या कहीं और आप शायरे जितने हमारे भलवाल के हैं या जितने आपके शुफ़क़ा दूसरे शहरों से हैं उनको को हम मौका देते हैं कि जिसमें हम एक अच्छा मुशायरा भी करें और जिसमें एक हमारे शायरी भी उसमें हिस्सा लें और आप लोगों की जो मुझे इस सरकारी सूरत से जाना था इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलकर इंशाल्लाह ताला दोबारा कोई बनाते हैं प्रोग्राम इस तरह का हम दोबारा करते हैं इंशाल्लाह। राणा जावेद साहब एसी साहब को गिफ्ट पेश करना चाहते हैं और राणा साहब अपनी किताब कहाँ है? जनाबे असगर शामी साहब और इमरान साहब मैं उनसे भी मुल्तमस किताब राणा साहब से नीचे तशरीफ ले आए एक इनकी किताब पकड़ लेते हैं ऑफिस में पढ़िए आपकी साइड टेबल पे जहाँ कदम कदम पे एक पहाड़ रख दिया गया मेरे वजूद के लिए नकाहतें लिखी गई मेरे वजूद के लिए नकाहतें लिखी गई कोई नजर झुकाए बिन गुजर गया सरा कोई नजर झुकाए बिन
گزر گیا اثرات سے کسی کے واسطے مگر وضاحتیں لکھی اور شیخ نے میرے حضور کس لیے بتا کے امتحان کا میرے حضور کس لیے بتا کے امتحان کا ورق ورق پہ خوب تر بشارتیں لکھی گئیں ورق ورق پہ خوب تر بشارتیں لکھی گئیں میرے کہے پہ آج تک عجب عجب غلط میرے کہے پہ آج تک عجب عجب غلط غلط سنی گئی پڑھی گئی روایتیں لکھی میرے کہے پہ آج تک عجب عجب غلط غلط سنی گئی پڑھی گئی روایتیں لکھی گئیں بلندیوں سے پستیوں کی سمت پھینک کر مجھے بلندیوں سے پستیوں کی سمت پھینک کر مجھے میرے نصیب میں فقط حقارتیں لکھی گئیں سننا جی کہ میں گاؤں سے اٹھا تو تیرے شہر کے کلس لے میں گاؤں سے اٹھا تو تیرے شہر کے کلس لے میری غزل کے خوف سے یہ نفرتیں لکھی میں گاؤں سے اٹھا تو تیرے شہر کے کلس لے میری غزل کے خوف سے یہ نفرتیں لکھی گئی کسی کی نطق میں رکھا گیا بس کو پاک بس ریاضت میں لکھی گئی تمہارے فیصلوں پہ اب مرے نہیں تو کیا کریں تمہارے فیصلوں پہ اب جہاں پہ مقتدین تھے امامتیں لکھی گئی تمہارے فیصلوں پہ اب مرے نہیں تو کیا کریں جہاں پہ مقتدین تھے امامتیں لکھی گئی اور سمجھا لو دیکھنا مکہ جاوید آگا یا آگا یہ اس میں باہی نہیں سکتے کہ لکھا جو ابتدا میں گھا کے آ تو دوست ہو جہاں لکھا جو ابتدا میں گھا کے آ تو دوست ہو یہاں عداوتیں حراکتیں ملامتیں غدر کے دوست ہیں پیچھے میں 2 ہفتے پہلے مجھے ایک خارج سے دعوت یہاں دی بھی پروار میں نے کہا جی اجازت بچوں کے لیے میرے پاس میری ریاست کی یہ فیض جو کہ بہت چاہ سے ملا ہے یہ فیض جو کہ بہت چاہ سے ملا ہے مجھے کسی فقیر کی درگاہ سے ملا کسی فقیر کی درگاہ سے ملا ہے مجھے اور حضور چلتے رہو گے تو پاؤ گے منزل حضور چلتے رہو گے تو پاؤ گے منزل یہی ہے راز جو ہمراہ سے ملا ہے یہی ہے راز جو ہمراہ سے ملا ہے مجھے یہ گفتگو کا سلیقہ شعور علم و عمل یہ گفتگو کا سلیقہ شعور علم و عمل علی ولی کی قدم گاہ سے ملا علی ولی کی قدم گاہ سے ملا ہے مجھے یہاں سے پہلے گیا ہے کوئی سوئے مقتل یہاں سے پہلے گیا ہے کوئی سوئے مقتل نشان پاؤں کا ایک راہ سے ملا ہے نشان پاؤں کا ایک راہ سے ملا ہے مجھے اٹھا کے سر کو چلو گے تو کاٹ ڈالیں گے اٹھا کے سر کو چلو گے تو کاٹ ڈالیں گے فقط یہ حکم در شاہ سے ملا ہے فقط یہ حکم در شاہ سے ملا ہے مجھے تمام عمر کی خوشیوں کو کھا گیا یکسر تمام عمر کی خوشیوں کو کھا گیا یکسر جو ایک درد تیری آہ سے ملا ہے مجھے جو ایک درد تیری آہ سے ملا ہے مجھے اور سلیب تک تجھے لائے گی تیری حق گوئی سلیب تک تجھے لائے گی تیری حق گوئی یہ راز بھی دل گمراہ سے ملا ہے مجھے یہ راز بھی دل گمراہ سے ملا ہے مجھے اس ایک نقطے نے سب کچھ بدل کے رکھ ڈالا اس ایک نقطے نے سب کچھ بدل کے رکھ ڈالا جو فقر میں کسی زیچاہ سے ملا ہے مجھے کسی کے وصل میں کاٹی ہے عمر ہنستے ہوئے
کسی کے وصل میں کاٹی ہے عمر ہنستے ہوئے، کسی کا ہجر کو 2 ماہ سے ملا ہے، ہجر کو 2 ماہ سے ملا ہے مجھے، نہ جانے کون سی دکھیا کا چاند تھا آرا جو ایک لاشا چراگاہ سے ملا ہے۔ یہ فیض جو کہ بہت چاہ سے ملا ہے مجھے، کسی فقیر کی درگاہ سے ملا ہے۔ قدم سے پہلے چند شعر۔ کوئی پیغام بھی کیا لائے ہو، کوئی پیغام بھی کیا لائے ہو، آؤ بیٹھو۔ کوئی پیغام بھی کیا لائے ہو، آؤ بیٹھو، تم میرے چاند کے ہمسائے ہو، آؤ بیٹھو۔ کوئی پیغام بھی کیا لائے ہو، آؤ بیٹھو، تم میرے چاند کے ہمسائے ہو، آؤ بیٹھو۔ اور میں تو دشمن سے بھی نفرت نہیں کرتا صابر، میں تو دشمن سے بھی نفرت نہیں کرتا صابر، تم تو پھر بھی میرے ماں چائے ہو، آؤ تم تو پھر بھی میرے ماں جائے ہو، آؤ بیٹھو۔ اور غزل کے چند شعر دیکھیے گا۔ پارسا کس کو گناہگار بتا کس کو کہوں، پارسا کس کو گناہگار بتا کس کو کہوں، وجہ بے رنگی گلزار بتا کس کو کہوں، پارسا کس کو گنہگار بتا کس کو کہوں، وجہ بے رنگی گلزار بتا کس کو کہوں، ایک تیرے سوا دنیا میں کوئی میرا نہیں، ایک تیرے سوا دنیا میں کوئی میرا نہیں، ایک تیرے سوا دلدار بتا کس کو کہوں، ایک تیرے سوا دلدار بتا کس کو کہوں۔ اور یہ میرا شعر جناب اے.سی صاحب کے نام کروں گا۔ تم نے بھی شب کے اندھیرے کی اطاعت کی ہے، تم نے بھی شب کے اندھیرے کی اطاعت کی ہے، بڑھتی ظلمت کا طرفدار بتا کس کو کہوں، تم نے بھی شب کے اندھیرے کی اطاعت کی ہے، بڑھتی ظلمت کا طرفدار بتا کس کو کہوں۔ روز اخلاق کے اٹھتے ہیں جنازے صابر، روز اخلاق کے اٹھتے ہیں جنازے صابر، میں یہاں قوم کا مہمار بتا کس کو کہوں، میں یہاں قوم کا مہمار بتا کس کو کہوں۔ ایک غزل اور پھر اجازت چاہوں گا۔ کوئی تدبیر کروں اسر نو، کوئی تدبیر کروں اسر نو، تجھ کو تسخیر کروں اسر نو، اور گوند کر چاک پہ لاؤں مٹی، گوند کر چاک پہ لاؤں مٹی، خواب تعمیر کروں اسر نو، خواب تعمیر کروں اسر نو، اور منظر وصل سے باہر نکلوں، منظر وصل سے باہر نکلوں، ہجر تصویر کروں اسر نو، منظر وصل سے باہر نکلوں، ہجر تصویر کروں اسر نو، اور کیا کروں مجھے بلا خیز کی بات، کیا کروں مجھے بلا خیز کی بات، کیوں بیان ہیر کروں اسر نو، کیا کروں مجھے بلا خیز کی بات، کیوں بیان ہیر کروں اسر نو، اور اسر نو میں پڑھوں غالب کو، اسر نو میں پڑھوں غالب کو، پیروی میر کروں اسر نو، اسر نو میں پڑھوں غالب کو، پیروی میر کروں اسر نو، شام ہوتے ہی جلا کر دل کو صبح تنویر کروں اسر نو، شام ہوتے ہی جلا کر دل کو صبح تنویر کروں اسر نو، اور وہ نہیں پاس تو کیوں میں صابر، وہ نہیں پاس تو کیوں میں صابر، خود کو دل گیر کروں اسر نو۔ بہت یہ عشق باپ سمیٹوں، یہ عشق باپ سمیٹوں کہیں نکل جاؤں، یہ عشق باپ سمیٹوں کہیں نکل جاؤں،
میں اپنے خواب سمیٹوں کہیں نکل جاؤں خزاں سے پہلے درختوں پہ خوف طاری ہے خزاں سے پہلے درختوں پہ خوف طاری ہے میں سب گلاب سمیٹوں کہیں نکل جاؤں خزاں سے پہلے درختوں پہ خوف طاری ہے میں سب گلاب سمیٹوں کہیں نکل جاؤں اور قدم قدم پہ یہاں مفلسی کے ڈیرے ہیں قدم قدم پہ یہاں مفلسی کے ڈیرے ہیں سخن صاحب سمیٹوں کہیں نکل جاؤں سخن صاحب سمیٹوں کہیں نکل جاؤں اور کبھی کبھی تو جہاں سے یہ سوچتا ہوں میں کبھی کبھی تو جہاں سے یہ سوچتا ہوں میں گناہ ثواب سمیٹوں کہیں نکل جاؤں گناہ ثواب سمیٹوں کہیں نکل جاؤں اور یہاں تو راج اندھیروں کا ہے یہاں سے میں یہاں تو راج اندھیروں کا ہے یہاں سے میں قلم کتاب سمیٹوں کہیں نکل جاؤں قلم کتاب سمیٹوں یہاں تو رات اندھیروں کا ہے یہاں سے میں قلم کتاب سمیٹوں کہیں نکل جاؤں اور یہ عشق باغ سمیٹوں کہیں نکل جاؤں میں اپنے خواب سمیٹوں کہیں نکل جاؤں لفظ پھر لفظ ہے جذبوں کا سمیٹے کیوں کر میں کیسے کر پاؤں اظہار عقیدت تم سے ابراہیم ندیم صاحب لاہور سے تشریف لائے اور واپسی بھی ان کی آج ہی ہے لہذا اصغر شامی صاحب انہوں نے وقت جنی خوشی ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜਮੇ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਪੜੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ फरमा रहे सन कि शायद मेरी 25 साल बाद अपना अदीब नासिर साहब बलवाल वापसी हुई है मैं तकरीबन साल नहीं तो शायद सवा साल या 1.5 साल बाद जो भी कभी कोई मेरे मौका मिलता तो मेरी पहली कोशिश होनी है कि मैं बलवाल जाऊँ बलवाल मेरे लिए एक सीजन का दर्जा रखता है ईमान का ऐसा ना मक्का और मदीना उस तो बाद अगर कोई जगह मेरी प्यारी है तो बलवान बिल्कुल किसी को बालने को बगैर और ये मेरे उस्ताद ने इन्हों तो मैं जिन्ना भी माड़ा मोटा शेर कहने का मेरे वाल है वो इन्हों की देन है इन्हों के मरोने मिन्नत है शुरू तो मैं साढ़े दोस्त ने अकमल तबस्सुम मेरा ख्याल है बेशुमार दोस्त जानते होंगे क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी जी उन्होंने वसादत नाल इन्हों दी महफलों से आने का मौका मिला और किसी लगी लिपटिप तो बगैर कहांगा कि उदों मैनू शेरा तो ज़्यादा शक्कर पारे का लालच होता से जेडे उत्थे मिलते सन ते अल्लाह पाक ने एक पासे लाना सी इस काम से आहिस्ता 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 शेर वाले पास आते गए और मैं समझना कि मैं खुशकिस्मत हाँ शादी साहब इस तरह के मुशारे से ना मैं एक लतीफ़ा सुनाना दोस्तों कि खान साहब गाँव बजाने वाले खान साहब जो रहे ना बाजियां वाले फरंगियां ले बेरोजगारी तो तंग आके उन्हें एक जगह पर मार्किया की रेहड़ी ला ली तो हूँ चूँकि सारी उम्र कभी कोई कारोबार नहीं किया तो उन्होंने पता कोई नहीं सी है कि खान साहब बेरोजगार से तंग आके ना माल्टे से रेहड़ी लाई और ऐसी जगह ते ला ली रेहड़ी जिथे लोगों की आमदोरफ्त नहीं सी है 4 5 6 7 8 दिन गुजरे तो माल्टे सुखे निके निके बेरा जिन्ना हो गए तो खान साहब पानी का तरौका लाते हैं माल्टे को कह रहे हैं और तुसी नहीं विकना ना विको होश ते करो यार शेरा ते कोई थोड़ी बहुत बात दो ना सानू भी पता चले कि असीं कंधा नाल मुखातिब नहीं है असीं किसी बंदे नाल मुखातिब हां तो पुराना समझ गई शेर चंगा ना लगे तो मतलब पुराना समझ के दाद दे दिंदा कि यार अन्ना बंदा पैंडा कट के आया कि चलो कोई थोड़ी जी दाद दे दिए एक्सटेंशन लगाए सर 4 दिनों में शौक पुराना पै जाए
चार दिनों में शौक पुराना पै जाए जेकर कीता कौल हंडाना पै जाए। चार दिनों में शौक पुराना पै जाए जेकर कीता कौल हंडाना पै जाए ते प्यार दे पैंडे पैन तू पहला सोच लवी। प्यार दे पैंडे पैन तू पहला सोच लवी हो सकता है प्यार में खाना पै जाए। हौली हौली पिछाने का माहौल इस तरह का बन रहा कि इतने ना मैंने लगता कोई बंदूक रखनी चाहिए जो इधर उधर गल कर फैर मार। मैं राणा साहब पूछ रहा था राणा शहजाद साहब हाँ मैं ऐसे वास्ते कह रहा था उन्होंने मैं कहा कि मेरी इतने ना हाँ बंदूक भी लियाओ तो मेरी हिमायत इतने ना राइफल साहब ना बह जाओ मेरा नहीं सुनता वो सीधा फाड़ मारो हाँ लत्ता ते मार दो हाँ ते जद भी ਉਹਦੀ शक्ल भुलानी पैंदी है जद भी ਉਹਦੀ शक्ल भुलानी पैंदी है पहले अपनी सुरत गवानी पैंदी है। जद भी ਉਹਦੀ शक्ल भुलानी पैंदी है पहले अपनी सुरत गवानी पैंदी है। जद भी ਉਹਦੀ शक्ल भुलानी पैंदी है पहले अपनी सुरत गवानी पैंदी है और अज भी ਉਹਦੀ याद की भट्ठी भखदी है। अज भी ਉਹਦੀ याद की भट्ठी भखदी है अज भी अग नाल प्यास बुझानी पैंदी है। अज भी ਉਹਦੀ याद की भट्ठी भखदी है अज भी अग नाल प्यास बुझानी पैंदी है। और शामी साहब जी अमराना साहब के बाजे वेले भार नहीं होंदा कसमां दा बाजे वेले भार नहीं होंदा कसमां दा बाजे वेले गल देनी पैंदी बाजे वेले भार नहीं होंदा कसमां दा बाजे वेले गल देनी पैंदी है। जद भी ਉਹਦੀ शक्ल भुलानी पैंदी है पहले अपनी सुरत गवानी पैंदी है। बंगाल में जब मुशायरा था ब्रदर ने बताया कि कासम ज़ियाउल कासम साहब के शागिर्द थे तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है वो बंगाल में अटाउल्लाह कासम सॉरी तो वो यहाँ पे बंगाल में पढ़ने के लिए आए हुए थे। मुझे आज भी याद है उनका जुमला तो उन्होंने कहा था कि ये मुझे भलवाल नहीं ये मुझे भोपाल लगता है। और यहाँ पे जब मुशायरे 85-90 में होते थे खुदा की कसम लोग दावतनामे ढूंढते थे मिलते करते थे कि यार हमें दावत दे दो। हम यहाँ पे मुशायरा सुनने के लिए लोग इतने खूबसूरत आते थे और बड़ा अच्छा लगता था। बिल्कुल वो किसी शायर ने क्या खूबसूरत शेर कहा था कि अब ये सोचूं तो भंवर ज़हन में पड़ जाते हैं अब ये सोचूं तो भंवर ज़हन में पड़ जाते हैं कैसे चेहरे हैं जो मिलते ही बिछड़ जाते हैं। शाम हो रही है आधी रात का वक्त था और असगर शामी साहब जनाब गजल लिख रहे थे। आधी रात का वक्त था और हद सिर्फ था गहरा सकूत और असगर साहब फरमा रहे थे शौक से मशक़े सुखन। अचानक जाग उठी बेगम और चीख कर उसने कहा तुम अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। सोच अफलाक से चेहरा किताबों जैसा गुफ्तगू रोशनी अंदाज़ा ख्वाबों जैसा इनसे मिलिए कि जो लोग हैं सरमाया वक्त इनसे मिलना भी है काम सवाबों जैसा। ये तमाम अशार उस हस्ती के नाम जो हमारा तारुफ है हमारे बलवाल की पहचान है हमारी शान है। लफ्ज छोटे पड़े हैं वक्त की किल्लत के सबब वो प्रोटोकॉल नहीं दे पा जिसके वो मुस्तहिक है। आपकी भरपूर तालियों की गूंज में मेरी पहचान बलवाल की शान जनाब मोहम्मद असगर शामी साहब। इस सारी मेहरबानी का दावत होनी चाहिए होएगी बात मेरा जो है इब्राहिम के साथ जाता है कि यार सादरी कितने रहे इन्होंने जो मेरे हुसैन ये मेरे घर ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ
अल्लाह से आपको ठीक रखे, अल्लाह नासिर साहब ने हदायत दे कोई बाकी का कोई मुशायरे का ये ध्यानदारी की गल जे जिन्ना मुशायरे का लुत्फ आ रहा सी इन्हों ने वो की ना उन्होंने एसी साहब बुलाया उन्हें कहा तुम क्यों चुप रहा मैं खराब कर जाना कर मुशायरा एक बारी असी बैठे तो मैं खाया नासिर डिंगे शरीफ उत्ते साढ़े पीर साहब ने उन्होंने नहीं किया उन्हें यार दो ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਨ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ ਨਜ਼ਰ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਅਰਗਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਰੁਸ ਗਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕਰਾ ਦੇ ਉੱਧਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆਗੀ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਦਾ बुनियाद जी वो अदब है बहरहाल हूँ जो तुम मैच टूर्नामेंट याद कोई लेकिन चलो एक शेर कोई कड़कती धूप में रोशन सितारा देखना चाहे कड़कती धूप में सैलरी है कड़कती धूप में रोशन सितारा देखना चाहे अजब नादा है पानी में शरारा देखना चाहे हम सारी दुनिया दफन कर रहे हैं और जिसके वास्ते हम सारी दुनिया दफन कर रहे हैं बड़ा नादा है फिर तख्ते हजारा देखना बड़ा नादा है फिर तख्ते हजारा देखना चाहे राणा साहब राणा जवेद खाल खींचती या अलाव में उतारे जाते खाल खींचती या अलाव शफी गंजम खाल खींचती या अलाव में उतारे जाते हम तेरे अपनों में आकाश पुकारे जाते हम तेरे अपनों में आकाश पुकारे जाते खाल खींचती या अलाव में उतारे जाते हम तेरे अपनों में आकाश पुकारे जाते और तुमसे दूरी का तस्वुर भी कहाँ था मुमकिन तुमसे दूरी का तस्वुर भी कहाँ था मुमकिन चाहे हम रोज ने मुंह से ही गुजारे जाते चाहे हम ये आगे न समझ आनी चाहे हम रोज ने मुंह से ही गुजारे जाते खाल खींचती औलाओं में उतारे जाते यूं होगा जमीन बोझ कभी सोचा ही कब था यूं होगा जमीन बोझ कभी सोचा ही कब था इस दिल के जजीरे पे जो एक खैर तरफ था हैरत है कि मुझसे राणा साहब मेरा ध्यान हैरत है कि मुझसे भी मेरा आज वही है हैरत है कि मुझसे भी मेरा आज वही है वो शख्स जो कल तक मेरे लुटने का सबब था और आखिर से रखोगे और शामी चलन ऐसा कि बोल उठे ये दुनिया वो शामी चलन ऐसा कि बोल उठे ये दुनिया मरना भी गजब इसका है जीना भी गजब कर कहा और क्या चाहिए और दर्द जामी मिले नात खालिद लिखे दर्द जामी मिले नात खालिद लिखे दर्द जामी सिर्फ 2 मिनट ज़्यादा नहीं दोस्तों के लेने सबसे पहली जो खुशी मुझे ज़ाती तौर पर फील हो रही है ख्वाजा साहब का और अस्कर शामी साहब का एक जगह पे इकट्ठा होना ये बलवाल के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और अदब वालों के लिए एक मुसरत की बात है तो मैं ज़ाती तौर पर दोनों बुजुर्गों का घुटनों को हाथ लगा के ममनून हूँ कि ये हमारी रिवायत हम इनके ममनून रहेंगे एक दूसरा इब्रार साहब का आना जबरदस्त बिल्कुल। तीसरे मैं जिनकी भी बात करूं आगा साहब को मैंने पहली दफा सुना मुझे लगा कि मुशायरे के साथ साथ मजलिस भी हम सुनी जा रहे जो हमारे ईमान का हिस्सा है हर शायर मैं किसी का नाम ना लेना मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं होगा ये यंग बच्चा कमाल कर दिया साबर साहब ने कमाल कर दिया सारे शोरा टाइम कम है नाम ज्यादा है तो ये मेरी ख्वाहिश छोटी सी ख्वाहिश ये है बलवाल में बड़ी टेंशन है
अफरा-तफरी का शिकार है हम सारे लोग। तो ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है खुशियों का। तो ख्वाजा साहब, आप सब लोग आपके ममनून होंगे कि आपने इस परेशानी और इस टेंशन के माहौल में लोगों को एक माहौल दिया कि वो मिल बैठें और अपनी परेशानियों को जो है ना थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। तीसरी बात ये है, हमेशा हम तमाम अदब के लोग, मेरा ये मानना है, माशरे अगर कायम रहते हैं तो अदबी लोगों से कायम रहते हैं। हमने माशरे को उन लोगों के लिए स्पुर्द कर दिया है जो रोल मॉडल नहीं है। हमारे तो रोल मॉडल आप थे, हमने मेहमान खुसूसी दूसरों को बुलाना शुरू कर दिया। आपके होते हुए किसी और मेहमान खुसूसी की जरूरत नहीं। नस्लें बदलनी है तो आपने बदलनी है, शऊर देना है तो आपने देना है। आधी बातें जो थी वो शादीशुदा लोगों के लिए कुछ शायरा ने कही, तो वो दिल की आवाजें हमारी सब की। इमरान साहब, कौम की बात की तो वो कौम का दर्द है। इस्लाम की बात की तो वो आज मैं डॉक्टर साहब का कहूँगा, डॉक्टर साहब ने वाकई ही रूहानियत का वो जो रंग है ना, जो हमारी जरूरत थी वो पूरा कर दिया। बहरहाल आप सारे लोग हमारे सर का झूमर है, ताज है। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ लाए, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह ये मैसेज बलवाल की तरफ से जाना चाहिए कि अदबी लोग इकट्ठे हैं। बाकी कोई ऐसा घर नहीं है, एक शायर ने यहाँ वो कलाम पढ़ा था दरख्त वाला, वो कौन शायर थे, 100% हर घर का मसला यही है कि दरख्त कटते हैं तो दीवारें बन जाती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन आप वाहिद लोग हैं जो हमें जोड़ के रखेंगे, तो हमें उम्मीद का रास्ता दिखाएंगे। तो हम आप सब लोगों के आगे साहब बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा मैं जरूर सलामत रहें आप लोग। BTV पर एक शो था हमारा, खोए हुओं की जस्तजू, जिसमें उस्ताद मोहतरम अताउल हक कासमी साहब थे। मेरा वहाँ पर एक छोटा सा करैक्टर था, बड़ा वो मीनिंगफुल था, खुद साख्ता दानिश्वर के तौर पे। बेसिकली वो एक टॉन था, तंज था जी। हर माशरे में, हर शोबे में जो मुख्तलिफ खुद साख्ता दानिश्वर हैं, उन पर वो एक तंज था। उस प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद या थीम था वो ये था कि हमारी जो रवायात शानदार और सुनहरी रवायात जी, वक्त के साथ साथ हम उनसे दूर हो गए जी। आज मामला ये हुआ है कि सोशल मीडिया और उससे पहले जो दूसरा मीडिया है, वहाँ पर एक गैर मुल्की सकाफती जलगार है। सही फरमा रहे हैं। हम लोग अपनी नस्लों को ये इल्ज़ाम देते हैं कि ये बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, बेशक ये बागी होते जा रहे हैं, इनको अदब अदाब का नहीं पता है, ये हमारी रवायात से और हमारी इक़दार से दूर हो गए जी। तो ईमानदारी की बात यह है कि मुझे लगता है कि ये बच्चे मजलूम हैं। हाँ, इनको कोई बंदा बता रहा है तो शायद हमारी तहजीबी रिवायत का शानदार सिलसिला ये एक तफरी तो है, लेकिन हम इसको कहेंगे एक सेहतमंद तफरी है, जिसमें बच्चों के सिलसिले के लिए बहुत कुछ है। बेशक उसमें एक मैसेज है। आज बदकिस्मती से ये हुआ है कि अगर ये बच्चे, मैं अगर इनसे पूछूं 2-4 शायरों के नाम भी, ये अंदाज़ा कि जिन शोरा के ये नाम लेंगे ना, वो सोशल मीडिया की पैदावार है, और उनके जो मौज़ूआत हैं वो शर्मनाक हद तक बिल्कुल अखलाकी हैं, उनको किसी तौर पर अदब में शुमार नहीं किया जा सकता। इसके लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि अहलियाने शहर, हम लोग बात करते हैं कि हमारे मुल्क में एक अफरा तफरी है, एक अनारकी है, बेयकीनी है, गैर यकीनी सूरत हाल है। हम कहाँ जाएँ? हमारा फ्यूचर क्या होगा? जिस बंदे का, जिस बच्चे का वसाइल इजाज़त देते हैं तो वो पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करते हैं जी। मैं जिस दौर की बात करता हूँ, आज से 25 साल पहले के, 30 साल पहले के, जब हम लोगों ने यहाँ पे अपने बचपन में उठाया, तो बलवाल के अंदर एक बड़ा पुरसकून माहौल था। ये सारे मेरे साथ हैं। ये सिलसिला जो एक अदब और अदाब, अल्लाह की मेहरबानी से मैं इसका क्रेडिट इनको देता हूँ। तलीमुल इस्लाम मिडल स्कूल था तब, मुझे नहीं पता शायद हाई स्कूल है। अब्दुल रज़ाक साहब अल्लाह ताला उनको, मलक इफ्तिखार साहब, मैंने अपने कालमों में जिक्र किया, मैंने अपने इंटरव्यूज़ में इस चीज़ का जिक्र किया है कि मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे वालिदैन के साथ मैंने अगर कुछ सीखा है अपने असातिज़ा से और अपने दोस्तों से, अहबाब से, तो इसका तमाम तर क्रेडिट मेरे
बलवाल की जो सादसा है, मेरे दोस्त है, मेरे अहबाब है, उनसे मैंने सीखा। बेशक इतने बरस गुजारने के बाद ना बंदे को कभी बैठ के ना जमा तफरीक ज़रूर करना चाहिए कि ज़िंदगी में हमें दिया क्या, हमें हासिल क्या हुआ है। ज़िंदगी तो ऐसे गुजर जाती है। मुझे अपना शेर पेशानी साहब याद आ रहा है कि एवं ही आंदे जाने लंघ गई जिंदड़ी अख चमकांदे लंघ गई। जिंदगी के 50 बरस आधी सदी से ज़्यादा होता है, वो ऐसे चुटकी में गुजरे और सबके साथ यही होना होता है। जवानी में पता नहीं चलता कि हम लोगों ने वक्त कितनी जल्दी से गुजार देना है। ये हमारी नस्ल हमारी आखिरी होगी। किसी का शिकवा शिकायत गिला करने से बेहतर है कि उनको बताया जाए कि हमारा माजी क्या था, लेकिन सिर्फ बताने की हकीकत नहीं। मकसद ये है कि उस माजी को हमें लेके चलना है। इंतहाई माजरत के साथ यहाँ पर मुख्तलिफ बच्चे भी हैं, हम लोग भी हैं। किसी का किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ होगा, किसी का किसी के साथ होगा। इख्तलाफ राय ज़िंदगी का हुस्न। हर बंदा अपने तौर पर दुनिया को देखता है, नज़रियात हैं उसके, लेकिन हर के ज़रूर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ज़ाती इख्तिलाफ में तब्दील करके इस हद तक आगे लेके जाया जाए कि वो दुश्मनी में तब्दील हो। ठीक है, आज बर्दाश्त की ये सूरत हाल है कि बच्चा इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करता, इख्तलाफ राय कहता मेरा बाप अगर मेरी पार्टी के साथ नहीं खड़ा, मेरी राय के साथ नहीं खड़ा तो वो मेरा बाप नहीं है, मैं उसको अगेंस्ट। ऐसे ये बदकिस्मती है। मैंने जो सवाल किया ना कि हमें ये सोचना है, हमें ये देखना है कि ज़िंदगी ने जो हमने अब तक गुजारी है उसमें हमारे पास बचा क्या है, हासिल वसूल क्या किया, हमारे पास क्या है, और आप लोगों ने आने वाली नस्लों को क्या, वो क्या शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी। हम मसलो जब भी उनको ध्यान आएगा कि तुमने फ़राक को देखा है। ये वाक़यातन बड़े लोग हैं, ये जो हमारे खड़े हैं ना, ये आला साहब। अच्छा, ये जो हमारे बात आपने की ना कि हीरो हमारा कौन है, बदकिस्मती ये हुई कि हमने हीरो बना लिया पराडो वाले को। जिसके साथ गन मैन है वो हमारा हीरो है। आपके टीवी ड्रामे में, आपके ये जो मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पर आपको क्रिमिनल स्टोरियाँ, जराइम पर दिखाई जाती हैं, ड्रामे दिखाए जाते हैं अजीबो गरीब से। बच्चे बेटा आपके लिए भी गंदे गंदे सब्जेक्ट हैं उनके। फूफा और एक लड़की का इश्क दिखाया जा रहा है, बहन अपने बहनोई के इश्क में गिरफ्तार है। स्टोरी इस तरह की दिखाई जा रही है कि बीवी अपने शोर को जहर दे रही है और अजीबो गरीब। यूरोप का कल्चर सारा वो हुआ ये है कि भाई हमें स्पॉन्सर करने वाला मल्टी नेशनल कंपनीज जो स्पॉन्सरशिप देती हैं, उनकी डिमांड ये है कि आपने इन सब्जेक्ट पर लिखना। तो बड़ी पुरानी बात नहीं, सोनिया गांधी ने एक दफ़ा कहा कि अब हमें पाकिस्तान से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने पाकिस्तान को सकाफती मास पर पता कर। ये तब स्टार प्लस घर घर में लिखा जाता था। शादी पे बच्चे पूछते थे कि शादी कैसे हुई, अभी तो वो फेरे भी नहीं हुए। गैर महसूस अंदाज में हमारे बच्चों को पता नहीं कि उनके साथ क्या हो गई है। मेरे पास बच्चे इंटर्नशिप के लिए आते हैं रेडियो पाकिस्तान में, एमफिल के बच्चे और बच्चियाँ, मास्टर के। तो मैं उनसे अगर कभी सवाल करूँ तो मुझे पूरी ईमानदारी से बताऊँ, अगर मोबाइल में से और पेरेंट्स में से ये एक का इंतखाब करना पड़े तो आप किसका इंतखाब करें? मोबाइल का। तो बच्चे हंस देते हैं। मुश्किल है। ये फैजाने नजर था यहाँ के मकतब की करामत थी। किसने सिखाए, किसने इस्माइल को अदाब खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि मुझे अदब ने, एहतराम ने, मैं जितना भी हूँ ना, अल्लाह ताला ने मुझे कोई इज्जत दी है, कोई हुनर नहीं है, हल्फन कह रहा हूँ। ये सारी बरकत इस वजह से आती है कि मैंने पूरे दिल से किसी एक्टिंग के बगैर, किसी अदाकारी के बगैर क्या मैंने अपने सीनियर्स की इज्जत की। गुड क्या क्या। और मैंने ये देखे हो ही नहीं सकता ना, मैंने सीखा ही इनसे है। किस तरह मैं इनकार करूँ कि मैंने नहीं सीखा? मेरा शौक परवान यहाँ से चला, अदब से। छोटे लेवल का मैं भी रहा, उस तरह का बड़े मजाज रहा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं लिटरेचर की तरफ ना आता तो शायद मैं उल्टे सीधे किसी काम में फंसा होता। तो मुझे अदब ने, लिटरेचर ने बड़ा कुछ दिया और इसका क्रेडिट मेरे उस्तादों को जाता है। रही बात अपना ख्वाजा साहब तशरीफ का, चूँकि मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, ये सारे मेरे उस्ताद हैं।
मेरा कभी कभार आना होता है, लेकिन भलवान में मैं ज़्यादा अदबी एक्टिविटीज़ में नहीं रहा। दोस्तों के साथ आता हूँ, हंसी मजाक कुछ दिन गुजारे और चला गया। लेकिन इनकी हिम्मत है, ख्वाजा साहब की, शामी साहब की। शामी साहब अब इस पोजीशन में नहीं है, सेहत इजाज़त नहीं देती है, घर के मामला इस तरह के हैं। पहले वक्तों में ना शायर फनकार दरबारों से वाबस्ता होते थे, इनके वज़ाइफ लगे होते थे। हमें दोहरी जंग लड़नी पड़ती है, एक जंग अपने साथ और एक माशी तख्लीक करने के लिए जो जंग लड़नी पड़ती है, बड़ी अज़मत नाम। हमारे तो शेर पे कोई बंदा दाद दे ना दे, कोई तवज्जो दे ना दे, मैं दावे से कहता हूँ कि जब कोई पराठों वाला आएगा तो सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे उसको देखने के लिए, उससे इम्प्रेस हो जाएंगे। कसूर हमारा भी नहीं, हमने इनको हीरो बना के पेश किया, वो हीरो नहीं है। आप लोग दुनिया के किसी भी माशरे के बच्चे से कम नहीं है। बदकिस्मती हमारी ये होगी कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, बल्कि पाकिस्तान से क्या मुसलमान कौम की भी अगर बात करें ना, तो इस पूरी दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है, पूरी ईमानदारी से, गैर जानबदारी से अगर हम अपना जायज़ा लें तो हमारा किरदार क्या है इस दुनिया में ना, हमारा कोई हिस्सा नहीं है। आज हमारे साथ फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है ना, हम स्वाय दुआ करने के ना कुछ नहीं कर। कभी चाइना जा रहे हैं मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, कभी रूस के पास जा रहे हैं कि साड़ी जान छुड़ाओ। यार अगर आप बच्चे, या हम लोगों ने जो खराबियाँ करनी थी ना कर दी हैं, लेकिन अगर आप बच्चे इस चीज़ को समझोगे कि आने वाले वक्त में आप लोगों को फेस करनी है ये सारी चीज़ें। आज जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है ना, वो हमारे साथ जहाँ पर खुदा ना खास्ता कभी किसी वक्त भी हो सकता है, उसकी शक्ल मुख्तलिफ होगी, ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह से, लेकिन भाई उसके लिए तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना आप लोगों को। हाँ बेशक, मुझे अंदाज़ा है कि नसीहत करना दुनिया का सबसे आसान काम और सुनना सबसे मुश्किल काम। आप लोग यकीनन बोर हो रहे होंगे, यार है कि अच्छा खासा मुशारा शुरू में लगा सी जब फजूल किस्म की, लेकिन बच्चों आप ये चीज़ों को समझ लो, आज ये तैयार कर लो। एक और गुजारिश है सर, ये जो बच्चे हैं ना, इंक्लूडिंग गर्ल्स कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, प्राइवेट सरकारी, कोशिश करें कि इनको आप इन्वॉल्व करें, कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ कराएं और उसमें इनको जुड़वाएं, और इनके साथ आप क्लासेस भी कराएं। किसी शामी साहब जैसे किसी शख्सियत को वहाँ पर बुलाया और बच्चों को सामने बैठा के इनसे मुकालमा करो, इंशाल्लाह गेस्ट स्पीकर के तौर पर। जी सर, गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाएं, इनसे मुकालमा कराएं। अपना ख्वाजा साहब हैं, इंशाल्लाह ये सारे हमारे जो लिखने वाले हैं, इनसे मुलाकात हो रही है। ये जो मैंने बताया ना कि हमारा PTV पे प्रोग्राम था, नेट पे आप लोग देख सकते हो, उसमें उसका थीम ही ये था कि हमारी वो रवायत और इक़दार जो ख़त्म हो गई है ना, वो सेल्फ मेड लोग थे जिन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी स्ट्रगल करते हुए, उनको बुलाया करते थे। उसमें प्रेसिडेंट साहब तक भी आया था, सारे लोग, तो उनसे सवाल ही यहाँ से करते थे। मैं उसका स्क्रिप्ट लिखा करता था कि जब आपने होश संभाली तो आपके इर्द गिर्द का, आपके घर का माहौल कैसा था। आप सुन के हैरान होंगे कि अल्लाह ने आज आपको सारी नेमतें दी हैं। पाकिस्तान बनने के बाद ना लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी, साल में एक सूट पता नहीं किस तरह से वो बनाते थे या नहीं बनाते थे। जूता जो उनका होता था ना, कहीं जाना होता था तो वो घर में पड़ा होता था, जाने के लिए वो निकालते थे, गांव से निकलते हुए पहनते थे, रास्ते में फिर उसको उठा लेते थे, फिर किसी और जगह जाते थे तो वहाँ फिर उसको धो के पाँव तक पहन लेते। मतलब अब हमारे साथ सारे वसाइल हैं, लेकिन बेबरकती क्यों है, वजह क्या है, ये वो सारे सवाल हैं। बच्चों आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करो, अपने हीरो चेंज कर लो। जो रियल हीरो है ना आपकी, वो पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए। आज मोस्टली बच्चों से आप पूछ लें भाई आप मुझे बताइएगा कि हमारा हीरो कौन है, तो पता वो क्या नाम लेंगे, आपके हीरो कौन है। कोई इकबाल का नाम नहीं लेगा, ख्वाजा का नाम नहीं लेगा, तो बच्चे नाम किसका लेंगे, शाह इस तरह के हीरो के नाम से, ये वो हीरो नहीं है। तो हमारे बच्चे भी दुनिया में उन्हीं बच्चों की तरह जो बाकी दुनिया के बच्चे हैं ना, अल्लाह ताला ने उनको भी वही सारा कुछ लेकर नवाज के भेजा। हमने ये करना है कि अपने मुल्क को अगर आगे लेके जाना तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं कि मैं बस उनके साथ खड़ा हूँ तो मैंने
ऐसी की तैसी फिर हुई है। साढ़े गवांढी होते सन तुराबी साहब अल्लाह ताला उन्हें खैर करते हैं, उन्हें केबल लवा ली, बड़े अच्छे जाकर सन मौलवी भी अहले तशरीफ। मैं उन्होंने कहना तुसी क्यों लवाए जरा केबल? कहते यार मैं खबर सुननी होंगी या फिर सुबह मौलवियों का प्रोग्राम सुनना होगा। एक दिन मैं उन्होंने घर चला गया, उन्होंने जाके कोई और ही लाया, मैं कह रहा मैं वो लफ्ज़ नहीं कह सकता। उन्होंने एक बच्चा रख लिया अपने को दुकान से, मेरी उन्हें दुकान पता है तो वो बच्चे का नाम सी हक नवाज। उन्हें कोई ऐसा उन्होंने पलस्तर किया, पलस्तर करके उसका नाम रखता अली नवाज। उन्हें कड़ा जा पाया बाहर बैठा, मैं कोई ये किया, कहना जी मैं तुराबी साहब का मलाग हो गया है। मैं तुराबी साहब पूछा है, कहना मैं तुराबी का मलाग जो फिर लोग उन्होंने कहना मेरे देश कह नहीं सकता, उन्होंने फिर बोली किया ठीक है। तो उन्होंने जिस वक्त साढ़े उलमाए कराम साढ़े अदीब आदमी जिन्हें बच्चे समझान करी उन्होंने पता की सिखा रहे सर, ये बेवकूफ दुनिया पागल हुई हुई है। पढ़ सपारा खोल अल्लाह नशरा लाका सदरा का अल्लाह कटो सदर बाजार चो, अच्छा कुरान के अल्लाह कटो सदर बाजार। मैं थे हूँ बोल के सलाम कह रही जंग अल्लाह दसनी ये खराबी है साढ़े अंदर, ये जब तक ठीक नहीं होने। हूँ इतने इमामबाद का उमी साहब ने जाफर उमी साहब बड़ा प्यार है मेरा, और खुद जुम्मे का खुतबा मैं इतने सुनन जाना इमामबाद का, और वो सूद खोर के खिलाफ इतना बोलते हैं ना कि कोई हद है। वो लोग छड़ गए जुम्मा पढ़ना छड़ गए इमामबाद का, कई सैयद बार छड़ है जी। वो बड़े मतलब इस तरह उलमाए कराम जिन्हें तक ना करेंगे या जिन्हें असी लोग नहीं करांगे, ये बच्चे सारे खराब हो गए। असी इन्हों की सलाह करनी है, असी जिन्नी असी कर सकते असी करांगे इंशाअल्लाह ताला। हर एक जुम्मा छड़ के ना अपना तैयब एक महफिल। अच्छा साढ़े को जगह नहीं सी, बड़ी गलती है जगह नहीं होती सी, साढ़े को दसने की तालब होता सी कि ऐसा होंगे सन अल्लाह ताला नकवी साहब साढ़े नाम शहर पढ़ते असी उत्थे मुशायरे कराते थे इमामबाद नहीं रहे, असी हम पागल हो गए सर कि कितने रखिए मुशायरे, कितनी बारी कुरान बढ़िया कितने रखिए मौजूद है कुरान के अल्लाह कटो सदर बता। मैं थे हूँ बोल के सलाम कह रही जंग अल्लाह दसनी ये खराबी है साढ़े अंदर, ये जब तक ठीक नहीं होने। हूँ इतने इमामबाद का उमी साहब ने जाफर उमी साहब बड़ा प्यार है मेरा, और खुद जुम्मे का खुतबा मैं इतने सुनन जाना इमामबाद का, और वो सूद खोर के खिलाफ इतना बोलते हैं ना कि कोई हद है। वो लोग छड़ गए जुम्मा पढ़ना छड़ गए इमामबाद का, कई सैयद बार छड़ है जी। वो बड़े मतलब इस तरह उलमाए कराम जिन्हें तक ना करेंगे या जिन्हें असी लोग नहीं करांगे, ये बच्चे सारे खराब हो गए। असी इन्हों की सलाह करनी है, असी जिन्नी असी कर सकते असी करांगे इंशाअल्लाह ताला। हर एक जुम्मा छड़ के ना अपना तैयब एक महफिल। अच्छा साढ़े को जगह नहीं सी, बड़ी गलती है जगह नहीं होती सी, साढ़े को दसने की तालब होता सी कि ऐसा होंगे सन अल्लाह ताला नकवी साहब साढ़े नाम शहर पढ़ते असी उत्थे मुशायरे कराते थे इमामबाद नहीं रहे, असी हम पागल हो गए सर कि कितने रखिए मुशायरे, कितनी बारी कुरान बढ़िया कितने रखिए। मौजूद है हर स्कूल में तालीमुल इस्लाम का आपने नाम लिया, मैंने खुद महफिल तालीमुल इस्लाम से लिया, उसी घर में मैं भी उसी तरह रातों को जाके हर जुमेरात इब्राहिम साहब सेकंड करेंगे बात, हर जुमेरात महफिल बज़्म अदब लाज़िम हम पढ़ते थे मास्टर आलम साहब मास्टर आलम साहब हमारे हुआ करते थे, बुजुर्ग जो है मुझे शामी साहब जानते हैं, मास्टर आलम साहब जब मैं भी पढ़ता हर जुमे दिन अद्धी क्लास करते इलामा इकबाल दिया उस वक्त तो फिरोज संस्कृत शकीन छोटी जी बिल्कुल बिल्कुल वो साल क्या था लेके आओ वो सी ले सन उससे रुपये 2 रुपये मिलती वो एक इधर उधर तू शेर पढ़ दे तू शेर पढ़ दे शौक पैदा हो। ठीक है भाई साहब आपकी शाम साहब पैन को आज दस ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ क्या हाँ सर अपना शाम साहब एक और गुजारिश सारे दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, इसमें एक छोटी सी एक और गुजारिश कर रहा है
کہ سب سے زیادہ نگلیکٹ ہمارے یہاں پر جس وجہ کو کیا گیا نا وہ ادب اور وہ ادیب ہیں. آپ کسی شاعر کو کسی ادیب کو دعوت دیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آئیں گے ویسے آئیں گے. ایک بندے نے لاہور سے آنا ہے. میں کہتا ہوں شامی صاحب کو بھی اگر یہاں سے بلائیں تو عزت اور تقریر کے ساتھ بلایا جائے اس طرح سے کہ ان کو واپسی پہ کوئی چھوٹا سا تعزیہ ہدیہ کوئی گفٹ وہ لازمی دیں تاکہ بچے یہ نہ سوچیں کہ یار یہ تو سارے فارغ لوگ ہیں داج کے لیے آتے ہیں. ان کے ساتھ بھی ان کے اخراجات بھی ہیں, ان کے مسئلے مسائل بھی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان کو پراپر ویلیو دینی ہے, ان کو اس طرح سے اہمیت دینی ہے. تو بس یہ گزارش ہے.